हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं इतिहास यानी क्लास 11 हिस्ट्री, जो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर यहाँ पर है। द सेंट्रल इस्लामिक लैंड यानी इस्लाम का उदय और विस्तार। यहाँ पर लगभग देखा गया है कि 570 से लेके 1200 ईस्वी तक की हम जो है कहानी को लेंगे, जो 11वीं कक्षाओं के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चनों को जो है एनालाइज कर करेंगे, समझेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में, तो ये और भी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। और इसमें हर एक पॉइंट पे जो है हम विस्तार पूर्वक एनालाइज करेंगे, समझेंगे और जानेंगे। लेकिन आपको पता है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। According to the chapter here, the Central Islamic Land, there is a most important chapter here. The next question is most important arrive here. Discuss the main purpose and effect of crosses on the Islamic and Christian. This is important. Crusades on the Muslims and Christian. You know that this is the most important question for the exam view here. The crusades were a fight between the Christian of Europe and the Arabs, and flowing were to reason for it. This is a crusade. There is a most important reasons here. The Palestine was the holy land for the Christian, as most there are religious place were located here. The Palestine was the holy land for the Christian, as most of the religious places were located here. It was the place of Jesu and crucifixions and the resurrections. It is acquired by the Arabs in 638 CE. So there was a hostility between the European Christian and Muslims. This is important. Hostility toward their Muslim world become more pronounced in the 11th century. There is 11th century. There is a most important hostility toward the Muslim world become pronounced in the 11th century. And Gnomes, Hungarians, and some Slavs had been converted to Christianity, and the Muslims along to remain as the main enemy. You know that they convert to the Christianity and the Muslims along the remain as the main enemy. In the 11th century, there come a change in the social and economical organization of Western Europe, which also increased the hostility between to the Islamic world and Christians. This is an important point here. The clergy and the warriors class want to establish a political stability in the regions for economical growth. You know that there is important. The clergy and the warrior class want to establish a political stability in the regions for the economic growth here. The pace of God movement containing the possibility of the military conflict between two feudal principalities, and now aggressive tendency of the feudal society were defected from the Christian world and toward their enemies of God. This is an important point here.
यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं इस्लाम का उदय और विस्तार, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, कि धर्म युद्ध के मुख्य उद्देश्य एवं मुसलमानों एवं ईसाइयों पर प्रभाव की चर्चा करें। धर्म युद्ध के मुख्य उद्देश्य क्या थे और इस पर जो है मुसलमानों और ईसाइयों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हमने यहाँ पर एनालाइज करना है। कहते हैं धर्म युद्ध यूरोप के ईसाइयों और अरबों के बीच लड़ा गया। धर्म युद्ध जो था इस्लामों और ईसाइयों के बीच लड़ा गया, यानी ईसाइयों और अरबों के बीच लड़ा गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण धर्म युद्ध था और इस धर्म युद्ध के कई कारण थे और उन कारणों का यहाँ पर हम एनालाइज करने हैं कि के मुख्य उद्देश्य क्या थे, क्यों लड़ रहे थे ये धर्म युद्ध। कहते हैं फिलिस्तीन ईसाइयों के लिए पवित्र भूमि थी। फिलिस्तीन जो है ईसाइयों के लिए एक पवित्र भूमि थी क्योंकि उनके अधिकांश धार्मिक संस्थान यहीं स्थित थे। अब देखिए फिलिपियन जो है जगह ईसाइयों के लिए एक पवित्र थी क्योंकि उनके अधिकांश धार्मिक स्थान यहीं पे स्थित थे और यह यीशु के क्रॉस पर चढ़ने वाले पुनरुत्थान का स्थान था, क्योंकि यह स्थान वो था जहाँ पर यीशु के क्रूस पर चढ़ाया गया था और यहीं से जो है उन्होंने जो है काफ़ी आगे स्टेबलेट किया था। इसे 1638 ईस्वी में अरबों ने जीत लिया और इसलिए यूरोपीय ईसाई और मुसलमान के बीच शत्रुता थी। अब देखिए जनरल सी बात है, जो ईसाइयों के लिए पवित्र स्थान था जहाँ पर उनके यीशु क्रूस पर चढ़े थे, अब उस स्थान को जो है अरबों ने जीत लिया और वो अपने अधिकार में कर ली। जर्नल सी बात है, यहाँ पर धर्म युद्ध हो गई क्योंकि जो धर्म उनके जो है मानने वाले यहाँ पर अपना जीवन का जो है महत्वपूर्ण समय बिताया, महत्वपूर्ण चीज़ें घटनाएं घटी यहाँ पर। अब उन चीज़ों को छोड़ना उनके लिए सही नहीं था ईसाइयों के लिए। और फिलिस्तीन जो थी काफ़ी पवित्र भूमि वो लोग मानते थे क्योंकि यीशु के क्रॉस पर यहीं पर चढ़ाया गया था क्रूस पे, और इसको अरबों ने 638 में जीत लिया। अब जीतने के बाद उन्होंने उस क्षेत्र पे अपनी मनमानी करने लग गए। अब जर्नल सी बात है, आपके समक्ष कोई आपके धर्म के खिलाफ कुछ गलत करेगा तो जर्नल सी बात है आपको गुस्सा चढ़ेगा, क्योंकि जो धर्म को आप मानते हो उसको वो धर्म आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये बात यहाँ पर जो है अरबों को भी सोचना चाहिए कि भाई ये इनका पवित्र स्थान है, पवित्र जगह है और उनके लिए कुछ भी यहाँ पर गलत करना सही नहीं है, क्योंकि इससे जर्नल सी बात है उनकी धार्मिक ठेस पहुँचेगी। कहते हैं धर्म के अंतर्गत कुछ भी कहना गलत है, क्योंकि धर्म कभी हमें गलत रास्ता नहीं सिखाती है और धर्म में कुछ भी गलत नहीं है। कहते धर्म हमेशा सत्य पे आधारित होती है, सच्चाई पे आधारित होती है, मानवता के लिए होती है। और जब अरबों ने इन सब बातों को ठुकरा दिया और फिलिस्तीन जगह को जो है अपना लिया और उसमें गलत गतिविधियां करने लगे, तो जर्नल सी बात है कि यूरोपीय ईसाइयों और मुसलमानों के बीच शत्रुता का भावना पैदा होना स्वाभाविक बन जाता है। कहते हैं 11वीं शताब्दी में मुस्लिम दुनिया के प्रति शत्रुता और अधिक स्पष्ट हो गए और 11वीं शताब्दी में देखा जाए तो ये दुश्मनी जो थी अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई, क्योंकि ईसाई और मुस्लिम में ये दुश्मनी काफ़ी कठोरता को जो है जन्म दिया। नॉर्मन्स, हैंगरियंस और कुछ गुलामों को ईसाई धर्म में परिवर्तन भी कर दिया गया। अब देखिए ये भी बहुत बड़ा जो था यहाँ पर ईसाई धर्म के लिए मुसलमान जो है अरबों ने एक चोट पहुँचाई। इन्होंने जो है नॉर्मन्स और हैंगरियंस को जो है कुछ गुलामों के साथ में इस्लाम धर्म में परिवर्तन कर दिया और अकेले मुसलमान ही मुख्य दुश्मन बने रहे। तो जर्नल सी बात है, कोई किसी के धर्म में प्रवेश करेगा और प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो जर्नल सी बात है शत्रुता तो यहाँ पैदा होगी ही होगी। कहते हैं अब तक जितने भी सांप्रदायिक दंगा फसाद हुए हैं धर्म के अंतर्गत ही हुए हैं, और ये आप धर्म के अंतर्गत जो हिंसा फैलाते हो या एक दूसरे को शत्रु बनाते हो, इससे राजनीतिक नेता अपने रोटी सेकते हैं, क्योंकि उनको एक मुद्दा मिल जाता है, आपको जो है भड़काने का एक जरिया मिल जाता है। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि धर्म के प्रति कभी लड़ाई मत करना और कभी भी किसी धर्म को जो है गलत नहीं कहना। सभी धर्म जो है आदरणीय है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी इसको मानता है वो उसके लिए महत्वपूर्ण ही होता है। अगर आप किसी को कहते हैं इतना अधिक सम्मान नहीं दे सकते तो आपको गलत कहने का अधिकार भी नहीं है।
कहीं भी अगर आप जाओ आपका सर झुक जाना चाहिए। कारण क्या है कि उसको मानने वाला भी लाखों करोड़ लोग होते हैं। तो ये बात यहाँ पर जो है देखा जाए तो अरबों ने ये बात नहीं सोचा और उन्होंने फिलिस्तीन जगह जो था ईसाइयों के लिए पवित्र भूमि थी जहाँ पर यीशु की क्रूस को पर चढ़ाया गया था, उस राज्य को उन्होंने जीतने के बाद वहाँ पर गलत गतिविधियाँ करने लगे, जिनके कारण जो जितने भी जो ईसाई थे मुसलमानों के शत्रु बन गए। और दूसरा कारण सबसे बड़ा ये भी बना कि नॉमस और हैंगरिन्स और कुछ गुलामों को इन्होंने ईसाई धर्म में परिवर्तन कर दिया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, तो ये काफ़ी ज़रूरी भी था। देखा जाए तो 11वीं शताब्दी में जो है पश्चिमी यूरोप के सामाजिक और आर्थिक संगठन में काफ़ी बदलाव आया, जिससे इस्लामी दुनिया और ईसाई के बीच दुश्मनी भी बढ़ गई। तो जर्नल सी बात है 11वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के सामाजिक और आर्थिक संगठन में काफ़ी बदलाव देखने को मिला और ये जो था इस्लामी दुनिया और ईसाई के बीच दुश्मनी की सबसे बड़ी संघर्ष शुरू हो गई। पादरी और योद्धा वर्ग अधिक विकास के लिए क्षेत्र में राजनीतिकता स्थापित करना चाहते थे, यानी यहाँ पर पादरी का जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हो गया और योद्धा वर्ग का भी स्थान महत्वपूर्ण हो गया। वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे और वो रोटी तभी सेकी जा सकती थी जब कहते हैं इनमें कटुता दुश्मनी पैदा की जाए, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था। कहते गॉड मूवमेंट की शांति में सहमति और रियायतों के बीच सैन्य संघर्ष की संभावना शामिल थी। उनको लगता था कि इसमें सैन्य जो है संघर्ष होगी और इसका वो फ़ायदा उठाना चाहते थे। अब समानती समाज की आक्रामक प्रवृत्तियाँ ईसाई जगत से हटकर ईश्वर के शत्रु की ओर हो गई। तो जर्नल सी बात है, जो ईश्वर के प्रति गलत धारणा रखेगा उसमें जो है आम जनता जो है भड़केगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है कि यहाँ पर जो है इस्लामिक धर्म के लोगों ने जो है दूसरे धर्म के प्रति गलत विचार रखा और उनके जो महत्वपूर्ण स्थानों को नष्ट भी किया। इसके कारण ये दोनों काफ़ी शत्रु बन गए एक तरह से, और देखा जाए तो इसको धर्म युद्ध के नाम से ही जाना जाता है। और ये धर्म युद्ध भी थी क्योंकि हर एक अपने धर्म को बचाने के लिए हर संभव जो है प्रयत्नशील था, और ये ज़रूरी भी है। कहते हैं दोस्तों धर्म काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी इंसान के जीवन में, क्योंकि उससे उसको सच्चे मार्ग का पता चलता है। धर्म ही है जो हमें दुखों से दूर रखता है और धर्म ही है जो हमें अच्छे बातों का अनुसरण कराता है। कहते हैं किसी भी धर्म में कभी भी गलत बातों का अनुसरण नहीं किया गया है, और ये काफ़ी परम सत्य है जो हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आई, अच्छा लगा, अगर दिल से आप तिरपान सेंटर की मदद करना चाहते हो तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है, और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पे लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। तो आप एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप कई सालों तक तिरपान सेंटर के जो है फ़ायदा उठा सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है आपके लिए समझने के लिए भी, सोचने के लिए, विचार करने के लिए भी। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, जो रेड सब्सक्राइब आपके समझ दिख रहा है उसको दबाइए और तिरपान सेंटर के साथ जुड़ जाइए।